Hello students, welcome to my channel. Today I am going to deal with you in this video a very interesting story. But before starting my story, let me ask you something. आपने कभी किन्हीं को लेटर लिखा है? Have you all written letter to anyone? Maybe it's a father, mother, brother or a sister. Yes, na? Of course, yes, we all have written. Why? बिकॉज हम लोग का नीड्स अलग अलग थे बट इसमें ना क्या कभी किसी ने लेटर गॉड को लिखा है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल ना. बट इस स्टोरी में लेंचो जो कि हु इज़ अ पुअर फार्मर हैज़ रिटन अ लेटर टू गॉड. Yes, he has written a letter to God. In this story, it depicts the deep faith of a poor farmer in God. He wrote a letter to God asking for 100 pesos. Why he wrote a letter to God? He wanted money because all his crops were destroyed because of a hailstorm, and this damage had caused a great थ्रेट टू हिज फैमिलीज सर्वाइवल. और ये जो डैमेज हुआ, ये नुकसान हुआ, उसके लिए वजह से उसकी फैमिली को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा. इसके वजह से उसने लेटर लिखा. तो बात ये है कि डज ही गेट अ रिप्लाई फ्रॉम द लेटर? यस, उसको रिप्लाई मिलता है. यस, ही do get a reply, but not from God, but from the postmaster, who is also a nice fellow. So these are the introduction. In this video I will deal with you the introduction, summary and the explanation also. So let's start the summary. The summary of this chapter is that the story begins with a farmer named Lencho who is expecting for a rain shower to nourish his field. ये स्टोरी की शुरुआत होती है लेंचो से, जो कि एक फार्मर है, वो एक प्रोटैगनिस्ट है, वो एक हीरो है ये इस स्टोरी का, जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि उम्मीद कर रहा है कि रेन बारिश होगा ताकि उसकी जो फील्ड्स है ना कॉर्न के, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नरिश हो सके, ग्रो कर सके. एंड ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑल्सो that this year his harvest is going to yield him huge profit. और उसको कॉन्फिडेंट भी है कि बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा. एंड टू हिज utmost excitement, yes, बारिश भी होती है. The rainfall did happen, बट अगेन आफ्टर दैट क्या हो जाता है? हेल स्टॉर्म हो जाता है, सारा चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है. एंड दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द मेन रीज़न which forces him to write a letter to God, to ask help from God, to to help him from this situation, from this devastating situation. So what he do in that, he went to the town and post the letter with the name God. What did he do? He get to the town and post the letter to God, in which that is written God. The postmaster, when received the letter, they were very much amused. वो लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि सोच रहे थे कौन पागल है जिसने गॉड को लेटर लिखा है. बट they were all very excited also. Why they were all excited? They were very serious. After that, after laughing at him, after taking care of him, and after all these humorous things, वो लोग ना सीरियस हो जाते हैं. बाद में सीरियस इसलिए हो जाते हैं लेंचो की फेथ को देख करके, लेंचो की भरोसा को देख करके गॉड के लिए, कि हाउ अ पर्सन कैन राइट अ लेटर टू गॉड. ही डजंट नो दैट ही कुड नॉट get a reply. So what he did, the postmaster was a very nice person. So he collected the money, he contributed the money from his salary, a part of money from his salary, and also from his colleagues. And not he could not collect 100 pesos all, but he could collect more than half of that. That means he collected 70 pesos and he put it in an envelope. And the next day, when
when Lencho arrived at the post office, he was not very much surprised. He was not surprised that ही कुड रिसीव अ लेटर. उसको लेटर को देख के उसने एकदम सरप्राइज नहीं हुआ. क्यों सरप्राइज नहीं हुआ? क्योंकि उसका फेथ है, उसका फेथ था कि उसको भरोसा था गॉड पे कि उसका लेटर आएगा. और वो लेटर आता है और वो लेटर देख के बहुत ही निराश हो जाता है, बहुत ही एंग्री हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि गॉड कैसे ऐसा गलती कर सकते हैं. उसने तो हमें पूरा अमाउंट ही नहीं भेजा, जितना हम मांगे थे उसने हमें दिया ही नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं. तो ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड telling him that please this time please don't send it with the mail because these postmasters are not these are very crook है ना. these postmaster in this line it's a irony है यहाँ पे, व्यंग है. क्यों है irony? क्योंकि वही लोग ने इन्हें हेल्प किया था ना. वी ऑल नो दैट लेंचो को अभी तक पता नहीं कि उसी ने हेल्प किया, तो इसीलिए उसको करता है कि कैसे किसने हेल्प किया. इसीलिए लेंचो को बिलीव नहीं होता है, इसलिए वो फिर से गॉड को लेटर लिखता है ताकि उसको फिर से उम्मीद है कि प्लीज़ इस वक्त सारा हमको अच्छे से सारा भेजिएगा. सो next we are going with the explanation of the chapter. Okay, the house, this is the Lencho's house. About Lencho's house, the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Where was the house? The house was on the only, where was the house? The house was in the valley, the entire valley. पूरे वैली में उसका ओनली हाउस था, अकेला उसी का घर था. और कहाँ था? पूरे टॉप ऑफ अ हिल. क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ अ हिल, पूरे हिल के पहाड़ की ऊंचाई में उसका घर था. इतना ऊंचाई में था ना कि ही कुड सी अ रिवर, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स. इतनी ऊंचाई पे था ना कि वो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसके जो कॉर्न जो थे, मक्के जो थे, वो देख सक रहा था, जो कि उसको लग रहा था कि बहुत ही गुड हार्वेस्ट इस बार होने वाला है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर ऑफ एटलीस्ट अ शावर. और अर्थ को और ज़मीन को बस एक ही चीज़ की उम्मीद थी कि बस थोड़ी सी बारिश ही तो होना है, प्लीज़ हो जाओ. Throughout the morning, पूरा morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरे morning, पूरा दिन Lencho अपनी fields को intimately बहुत उम्मीद से देखता है और स्काई की तरफ देखता है कि बारिश हो, प्लीज़ हो. देखता है कि होगा कि नहीं होगा. No, we are going to get some water. This woman in this story is Lencho's wife. Who is she? She's Lencho's wife. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. Lencho asked his wife, no, we are really going to get some water ना. वो अपनी वाइफ से बोलता है कि अभी हम लोग को कुछ बारिश होगा ना, पीने मिलेगा ना. हाँ, जो कि खाना बना रही थी वाइफ उसकी, वो बोली कि यस गॉड विलिंग, गॉड चाहेंगे तो ज़रूर होगा. द ओल्डर बॉयज़, उसके जो बड़े बेटे थे, वो क्या कर रहे थे? वे वर्किंग इन द फील्ड्स पे काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस. जो स्मॉलर वंस, जो छोटे लोग थे, वो बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे? वो घर के सामने में खेल रहे थे जब तक कि उसकी माँ ने उन्हें नहीं बुलाया खाना खाने के लिए. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट just as Lencho had predicted, a big drops of rain began to fall. और जैसे ही हुआ big drops of rain, बहुत ही बड़ा बड़ा drops, जैसे ही उसकी माँ ने उसको खाना खाने के लिए बुलाता है, उसके घर पे बारिश होने लगता है. क्या होने लगता है? बारिश दिखता हो रहा है. big drops of rain, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है. in the northeast huge mountains of clouds could be seen approaching. और नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या हो रहा था? इस एरिया के में क्या हो रहा था? बहुत ही ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बहुत ही बड़े बड़े क्लाउड्स, मतलब बारिश होने की प्रिडिक्शन की जा रही है यहाँ पे. द एयर वॉज फ्रेश,
बारिश आने से पहले क्या होती है, एयर जो था ना बहुत ही फ्रेश था, ताज़ा था और स्वीट था, धीमा धीमा हवा चल रहा था. द मैन वेंट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन. और मैन जो है यहाँ जो लेंचू इतना खुश हुआ था ना कि बिना कोई मकसद के वो बाहर चला जाता है रेन का मज़ा लेने के लिए. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वापस आता है वो एक्सक्लेम्ड करता है, चिल्लाते हैं, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर न्यू कॉइन्स. इमेजिन स्टूडेंट्स, उसने रेन को ना न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया. वाई ही कंपेयर द रेन्स विद द न्यू कॉइन्स? बिकॉज द रेन, बिकॉज उसके जो क्रॉप्स है ना उसको पैसा देंगे ना, उसको हार्वेस्ट जब होगा, गुड क्रॉप्स होगा तो उसको प्रॉफिट होगा ना, तो दैट्स वाई ही कंपेयर द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स इनटू अ न्यू कॉइन्स. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are 5. और वो जो बड़े बड़े जो ड्रॉप, बड़े बड़े जो बूंदे आ रही थी ना पानी को, उसने कंपेयर किया 10 cent pieces से और छोटे वाले को 5 से. With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind of rain, with a satisfied expression, बहुत ही उम्मीद कर रहा था ना, तो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि बारिश हो रही थी और वो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न को ना पूरा कर्टेन ऑफ रेन से, मतलब पूरा कवर हो जाता है रेन के से. बट सडनली, अचानक क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती है. एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल. और रेन के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल स्टोन्स आने लगते हैं. दीज आर कॉल्ड हेल स्टोन्स. ओके, हेल स्टोन्स ओले जो होते हैं ना, बर्फ़ के टुकड़े, वो बहुत सारे हेल स्टोन्स आने लगे. होप यू ऑल चिल्ड्रेन इंजॉय द हेल स्टोन्स. बारिश के जो गिरते हैं बर्फ़ बारिश के टाइम में, बट फील्ड्स में क्रॉप्स के लिए ये इट्स वेरी हार्मफुल. ओके, सो फार्मर्स बहुत ही परेशान रहते हैं इसी हेल स्टोन से. बारिश आई, अचानक तेज़ हवा आने के साथ साथ रेन जो है ना चेंज हो गया किसमें, हेल स्टोन्स में. दीज ट्रूली रिजेंबल लाइक न्यू सिल्वर कॉइन्स. और वो किसकी जैसा लग रहा था, न्यू सिल्वर कॉइन्स की जैसा लग रहा था. बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन. और जितने भी लड़के थे सारे लोग रेन पे चले गए, बारिश में चले. रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स एंड द हेल स्टोन्स आर कंपेयर टू द फ्रोजन पर्ल्स. फ्रोजन पर्ल्स क्यों, ठंडी ठंडी बर्फ की जो गोली रहते हैं ना उसको कहा गया है पर्ल्स. हेल स्टोन्स को कंपेयर किया गया है फ्रोजन पर्ल्स से. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. देखो अब सारा मज़ा यहाँ ख़त्म हो गया. अब क्या होता है, देखो, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. बोल रहे हैं कि अब सच में बहुत बुरा हो रहा है. वो मैन बोलता है, लेंचो बोलता है, आई होप इट पासिस क्विकली. अब मेरा उम्मीद है कि अब ये जल्दी चला जाए. क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी क्रॉप्स के लिए ये अच्छे नहीं है, फसल की अच्छे नहीं है. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी नहीं जाता है. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, द होल वैली. कितने देर के लिए रहता है फ्रेंड्स, 1 आवर, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए रहता है. और कहाँ कहाँ किस किस पूरे घर पे उसने पूरा डिस्ट्रॉय करा हुआ था. गार्डन पे, हिल साइड पे, पहाड़ के किनारे पे, कॉर्नफील्ड पे, होल वैली, पता पूरे एरिया में पूरा हेल स्टोन्स ने कवर कर दिया था. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. अ फील्ड पूरा वाइट था जिससे कि कवर्ड पूरा नमक से भरा हुआ, वाइट लाइक दिस. सी द फिगर ओवर हियर, पूरा वाइट वाइट दिख रहा है ना यहाँ पे, जैसा नमक से भरा हुआ है. पहले ये पूरा हेल स्टोन से, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये आपको सारा हेल स्टोन से, मतलब बर्फ़ है, ठंडा ठंडा चीज़ है, तो ये अफेक्ट करेगा ना क्रॉप को. इसीलिए क्या होता है ना, पूरा क्रॉप्स ख़राब हो जाएगा ना, इसीलिए यही सब होता है. Not a leaf remained on the trees. ये आफ्टर हेल स्टॉर्म्स जो डिस्ट्रॉय हुआ ना उसके बाद का ये एक्सप्लेनेशन है. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. एक भी पत्ते नहीं बचे पेड़ में.
द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और कॉर्न जो था पूरा बर्बाद हो गया था. द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और जो लैंचो का जो सोल था पूरा दुख से भर गया. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब स्टॉर्म चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स. वो जब स्टॉर्म चला गया, जब सारा चीज़ चला गया, तूफान चला गया, तो वो मिडल ऑफ द फील्ड, बीचों बीच फील्ड में जा कर के बोलता है अपने बच्चों से, सन्स से, बेटों से कहता है कि अ फील्ड ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट. ये लॉकस्ट, उसको पढ़ाने से पहले ना मैं लॉकस्ट दिखाना चाहती हूँ. दिस इज़ अ लॉकस्ट. लॉकस्ट एक इंसेक्ट होता है ना, जो कि एक हार्मफुल होता है, जो ग्रुप्स में आता है. ओके, ग्रुप्स में एक नहीं आता है, बहुत सारे आते हैं, ग्रुप्स में आता है क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए. देख रहे हो किस तरह से ये लीफ को डिस्ट्रॉय किया. भाई ये डिज़ाइन नहीं है, डिस्ट्रॉयड लीफ है. ओके ओके सो प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड अपने बोलता है a plague of locust would have left more than this. और वो अपने बेटों से कहता है कि देखो, a plague of host, मतलब ये जो होस्ट लॉकस्ट लोग हैं ना, ये ज़्यादा छोड़ देते. हिज hailstones ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस hailstones had left nothing. This year we will have no corn. और वो कहता है कि इस साल हमको कोई कॉर्न, कोई मकई नहीं होगा. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. और वो रात उसके लिए बहुत दुख भरी थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. जितना भी हमारा काम था सब बर्बाद हो गया. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. और अभी कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. और हम लोग सारे लोग भूखे रह जाएंगे इस साल. सो बहुत ही परेशान रहता है वो. तो बहुत ही क्यों रहता है, क्योंकि सोच रहा है पूरा हम लोग इस साल पूरे हंग्री रहेंगे, पूरे भूखे रहेंगे. सो दिस आर द कंडीशंस व्हाई ही wrote a letter to God. So before this, let's see the oral comprehension check. Oral in between the questions लिया गया. What did Lencho hope for? Lencho किसके लिए उम्मीदें कर रहा था? Lencho hoped for a good rain because it was much needed for a good harvest. Okay, why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो ने क्यों कहा कि रेन ड्रॉप्स क्यों न्यू कॉइन्स की तरह है? क्योंकि दे वेर because they will because when it will be harvested, it will result into a prosperity, it will result into a profit. That's why he say that raindrops were like new coins. Students, इसकी आंसर्स ना मैं वीडियो के लास्ट में अटैच कर देंगी. ओके, how did the rain change? What happened to Lencho's fields? Rain किस में बदल गया? हेल स्टॉर्म्स में. रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो. ना जैसे ही आंधी तूफान आया वैसे ही ह्यूज हेल स्टोन्स आने लगे. व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स? लेंचोस फील्ड्स को क्या हुआ? और लेंचोस फील्ड्स गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द हेल स्टोन्स. ओके, क्वेश्चन 4. What were Lencho's feelings when the hail stopped? लेंचो की फीलिंग क्या थी जब हेल स्टॉप्ड हो गया? लेंचो की फीलिंग यही थी ना, बहुत दुख था उसको. वो सोच रहा था कि अब क्या होगा. लेंचोस वॉज फिल्ड विथ ग्रीफ व्हेन द हेल स्टॉप्ड. ना ही कुड नाउ इमेजिन. ये सारा आंसर्स जो है ना, ये यहाँ से इस क्वेश्चन लिया गया है. ओके, कि उसने सोचने लगा कि हाउ हिज फ्यूचर विल बिकम एंड हाउ ही विल फीड हिज फैमिली. Okay, these are the answers of these questions. Let's move further to our next topic. But in the hearts of all who lived in that solitary house, in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God.
बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, लेकिन सबको दिल में कुछ था कि कुछ होगा, क्योंकि पूरा उसका ना सॉलिटरी हाउस था, अकेला था ना उसका घर पूरे वैली में, और दे वो सिंगल होप, उसकी एक ही उम्मीद अब बची हुई थी, हेल्प फ्रॉम हुम, हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, सब कहने लगे डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। सारे लोग उसको उम्मीद जगा रहे हैं कि अपसेट मत हो, निराश मत हो, भले ही पूरा लॉस हो गया हो, लग रहा हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दीज आर द मोटिवेटिंग वर्ड्स ना। बहुत अभी निराश है ना, तो उसको बूस्टअप किया जा रहा है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए वो लोग कहते हैं ना कि हंगर से कोई नहीं मरता। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God. पूरा रात वो एक ही चीज़ सोचते रहा कि अब हमको एक ही उम्मीद है, हेल्प फ्रॉम गॉड, help of God, whose eyes has he had never been instructed, see everything what is deep in one's conscience। बोल रहा है कि उनकी आँख से कुछ भी नहीं छुपा है, वो सब चीज़ जानते हैं। कॉन्साइंस मीन्स क्या होता है? कॉन्साइंस मीन्स उसकी अंदर की जो बातें हैं, इनर सेंस, अंदर की जो आत्मा है, वो उसको भी पता है, भगवान को कुछ नहीं छुपा है उनसे। Lancho was an ox of a man walking like an animal in the fields। Lancho क्या था? Lancho एक एनिमल की तरह काम करता था फील्ड्स में, लेकिन फिर भी उसको कुछ लिखने आता था, पढ़ा लिखा था, मीन्स वो he was literate। okay, the following Sunday what he took step after the damage, ये सब अब बताएगा, ठीक है। how he began a process to write a letter, इससे अब हम लोग डिस्कस करेंगे। the following Sunday, अब आने वाला संडे में क्या करता है? डे ब्रेक में he began to write a letter which he himself would carry to the town, और ये लेटर लिखता है और वो खुद जाकर के टाउन में जाता है और मेल कर देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो कुछ भी नहीं था, क्या था? लेटर टू गॉड। ओके, अ लेटर टू गॉड था वो। गॉड ही रोट, ठीक है ना। लेटर पे उसने क्या क्या डिटेल्स लिखे हैं वो ये बता रहा है यहाँ पे। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो क्या लिखता है? इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, कि मैं और मेरी फैमिली इस साल हंग्री हो जाएंगे, भूखे हो जाएंगे। आई नीड 100 पैसोज, मेरे को 100 पैसोज चाहिए। इसी पैसे के लिए उसने फ़ोन किया, ठीक है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until the crop comes because the hail storm, बोल के वो चुप हो जाता है। वो उसको 100 पैसों क्यों चाहिए थे? इसलिए चाहिए थे ताकि वो अपनी फील्ड को, अपने खेत को फिर से उपजाऊ बना सके, फिर से कुछ लगा सके, है ना। ताकि अनटिल, जब तक कि उसका दूसरा क्रॉप, दूसरा फसल नहीं आ जाए, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सब बिगाड़ दिया। यही सब बोल के चुप हो जाता। He wrote to God on the envelope and put the letter inside and still troubled went to the town। क्या करता है? ये सब लिख के वो एनवेलप पे डाल के, लिफाफ में डाल के, लेटर को अंदर रख के, स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान है, लेकिन फिर भी टाउन चला जाता है एंड पोस्ट ऑफिस में जाके स्टैंप लगा करके मेल बॉक्स में लेटर को पोस्ट कर देता है। ओके, फिर उसके बाद क्या करता है? देखिए, ऑन द एम्प्लॉयज, one of the employees who was a postman also helped at the post office। एक जो एम्प्लॉय था वहाँ पे, वो क्या, जो कि पोस्टमैन है, वो क्या करता है? हेल्प करता है पोस्ट ऑफिस में। वो अपने बॉस के पास जाता है हंसते हुए कि अरे यार, कौन पागल है, ये लेटर लाया है गॉड के नाम पे, पागल है क्या? बिल्कुल।
Never in his career as a postman had he known that address. पूरे करियर में, पूरे लाइफ टाइम में अभी तक इसने इस एड्रेस के नाम से, इस पता के नाम से अभी तक इसने कोई लेटर नहीं देखा. द पोस्ट मास्टर फैट अमीएबल. और वो पोस्ट मास्टर कैसा था उसके बारे में बता रहा है, उसके नेचर के बारे में क्या बता रहा है कि वो उसका फिजिकल नेचर है कि वो मोटा था, एमिएबल था, फ्रेंडली था, है ना, पूरा दोस्ती वाला था, अच्छा था, फ्रेंडली था, फ्रेंडली नेचर का था वो. अमीएबल. ओके. फेलो हु ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. वो उसने जब देखा कि लेटर गॉड के नाम पे, तो वो भी देख के हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन इमीडिएटली तुरंत ही टर्न सीरियस. तुरंत ही उसने सीरियस हो जाता है. टैपिंग द लेटर. अपने लेटर को डेस्क पे रखते हुए कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. कितना भरोसा है. हम चाहते हैं कि मेरी विश है, मेरी चाहत है कि मैं इस आदमी की जो उम्मीद है, भरोसा है, उसको मैं बरकरार रखूं जिसने ये लेटर लिखा है. स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड. और वो अपने गॉड से जो बिलीफ है, कॉरस्पॉन्डेंस वो रखा है, वो हम चाहते हैं वो लगा रहे, इसलिए हम उसकी उम्मीद तोड़ना नहीं चाहते. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. और वो चाहता था कि वो उसका जो उम्मीद है गॉड पे वो हटी नहीं, इसलिए उसको एक आइडिया आता है. क्या आइडिया आती है? आंसर द लेटर. ही सेड आंसर द लेटर. लेटर का जवाब हमें देना चाहिए. यही तरीका है ना ताकि उसका फेथ बना रहे स्टूडेंट्स, है ना. वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट टू आंसर इट. और जब उसने लेटर को ओपन किया, इट वॉज एविडेंट टू आंसर इट. ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुडविल, इंक एंड पेपर. और उसको जब उसने देखा, लेटर को ओपन किया, वो देखा कि उसको आंसर करना था, तो उसने देखा कि गुडविल मतलब उसको अच्छाई से और इंक से, पेपर से भी बढ़ के कुछ देना होगा. ही स्टक टू. उसको मतलब यकीन पता चल गया पैसा की डिमांड हो, अब होगा कुछ सामान की डिमांड अब करेगा. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. वो अपने रिजोल्यूट रहा, पूरा एकदम लगे रहा कि नहीं, कि अब हम लगे रहा, मतलब कि उम्मीद छोड़ा नहीं कि नहीं, कुछ भी मांगेगा हम, अब तो हम इसका जवाब दे के ही रहेंगे, आंसर करके ही रहेंगे. मतलब पहले ही बता चुकी है ना कि वो पोस्ट मास्टर अच्छा था. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. वो पैसे मांगता है अपने एम्प्लॉयज़ से. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ द सैलरी. ठीक है, वो जो हंस रहा था ना स्टार्टिंग में, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो पैसे कलेक्ट करता है सैलरी से और अपने फ्रेंड से, अलग अलग सेवरल फ्रेंड से. एंड ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. और कहता है कि प्लीज़ कुछ दे दो, कुछ चैरिटी के ही हिसाब से, दान के लिए ही दे दो. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर दी 100 pesos. और वो उसके लिए ना इम्पॉसिबल था, छोटी सी जॉब थी ना उसकी, 100 उसको बहुत ही इम्पॉसिबल था, उसके लिए नामुमकिन था इतना सारा पैसा 100 pesos कलेक्ट करना. बट ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन दी हाफ. लेकिन वो फार्मर को जितना वो डिमांड किया था, लिटिल मोर देन दी हाफ, मतलब 70 pesos ना, हाफ 50 हुआ उसका, थोड़ा से ज़्यादा 70. ओके. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word. और वो सब पैसा रख के उसने एनवेलप पे रख करके और सिग्नेचर गॉड का करके वो उसके रख दिया. अब आता है हमारा ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन. लेंचो किससे फेथ था? लेंचो को गॉड पे फेथ था ना. व्हाट डिड ही डू? ही रोट अ लेटर टू गॉड. हु read the letter? Second question, who read the letter? The postman read the letter. What did the postmaster do then? The postmaster firstly laughed, है ना, पहले उसने हंसा. Then he contributed the money from his salary and also from his employees also, and put and collected 70 pesos and put it in an envelope. Okay. So the next is the following Sunday, Lencho came a little bit earlier. और जो मतलब ये लेटर जो आ गया है, पैसा जो मिल गया है ना कलेक्ट करके, फिर से लंच जाता है पोस्ट ऑफिस. उसने बिट अर्लियर, पहले ही वो आ जाता है, दैन यूजुअल
टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर टू हिम, और वो जा कर के बिना मतलब इसका ना कॉन्फिडेंस दिखाया गया है कि कितना वो गॉड पे उसको फेथ था कि वो लेटर गॉड को लिखता है, फिर भी लेटर लिखने के लिए आ जाता है। इफ़ देयर वॉज अ लेटर, और वहाँ जाके पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेनमेंट ऑफ अ मैन। और वो पोस्टमैन खुद ही, जो उसने हैंड किया था लेटर को, लिया था लेटर, वो खुद देख रहा है पीछे से कि कौन है ये जो उसने अच्छा काम किया, जो देख रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करता है पैसा दे लेकर के। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, और लेंचो ना जैसे वो लेटर का रिप्लाई आता है उसको कोई सरप्राइज नहीं मिलता है, मतलब उसको कोई भी अचंभा नहीं होता है ऑन सीइंग द मनी, उसको कोई भी अचंभा नहीं होता है मनी देख करके। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा भरोसा उसको गॉड था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वाई व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब गुस्सा हो जाता है जब वो पैसा काउंट करता है। क्यों गुस्सा हो जाता है? क्योंकि उसने तो 100 मांगा था और आया था तो 70। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड ऐसा मिस्टेक नहीं कर सकते, वो कहता है। ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकते, मना कर सकते हैं जो उसने रिक्वेस्ट किया। इमीडिएटली, तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो। देखो यहाँ पे तुरंत लेंचो विंडो के पास जाता है। ही दिस इज लेंचो, ओके, दिस इज लेंचो। अ सीन फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस इज शोन ओवर हियर, ओके। इमीडिएट तुरंत लेंचो चला जाता है विंडो में विथ इंक एंड पेपर, आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। वो जाकर के फिर से लेटर लिखने की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में, ओके। पब्लिक राइटिंग टेबल पे क्या करता है, वो लिखने शुरू कर देता है। और विथ वच ब्रिंकिंग हिज बो, और अपने आप को मतलब चिंता में रह के फिर से कोशिश करके फिर से वो लिखता है, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करता है। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, और जब वो लेटर लिखना बंद कर देता है वो जाता है स्टैम्प बाय करने फिर से, और लिक्ड उसको लगा करके, थूक लगा करके, सलाइवा जो होता है उसको लगा करके वो उसको चिपका देता है विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। मुट्ठी को एकदम ऐसे मार के दबाते हैं ना, वैसे करके वो कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही लेटर मेल बॉक्स पे पहुंचता है, पोस्ट मास्टर जो है उसको पढ़ने के लिए चला जाता है। इट सेड, और लेटर पे क्या लिखा होता है, जो सेकेंड लेटर होता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस, मतलब इन रिटर्न ऑफ द लेटर, उसको फिर से रिटर्न लेटर जो होता है ना वो लिखा है उसने कि ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना पैसा हमने मांगा था उसमें से तो आपने हमें सिर्फ 70 पेसोस दिया। सेंड मी द रेस्ट, आगे का मेरे को जितना बचा हुआ उतना हमको भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, हमको बहुत ही ज़रूरत है इसकी, ओके। बट डोंट सेंड मी थ्रू दी मैन, लेकिन मेरे को ना डोंट सेंड मी थ्रू दी मेल, लेकिन मेल के थ्रू मत भेजना, ठीक है। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लंचो लिख करके फिर से ये पोस्ट करता है। तो उसने जब ये तो लेटर तो उसने पोस्ट मास्टर ने पढ़ रहा है, तो वो ये जब सुनता है ना कि वो उसको बंच ऑफ क्रूक्स कह रहा, तो उसे बुरा लगता है। क्योंकि बुरा इसलिए लगता है क्योंकि उन्हीं ने तो दिया ना पैसा। तो ये यहाँ पे थोड़ा आयरनी राइटर ने लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा रहा क्वेश्चंस। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? No, he was not surprised to find a letter for him because he was very much confident that he would get the money. What made him angry? When he find that there was only 70 pesos, that made him angry. Okay students, this was the video. यहाँ पे इस वीडियो के बाद मैंने आंसर अटैच कर दिया है, ओके। यहाँ पे मैंने आंसर अटैच कर दिया है, ओके। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब my channel if you want my videos like this, and please study hard
for your exams and focus on your board exams. Thank you.